وہ اپنے ہی خیالوں میں مگن سی بیٹھی ہوئی تھی جب حنان نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی۔ فجر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، مسکرانے کی کوشش کرتے وہ بولی۔ حنان نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ خود میں مت الجھا کرو فجر، بتا دیا کرو مجھے۔ اینڈ آئی نو تم کچھ کہنا چاہ رہی ہو مجھ سے۔ حنان کے کہنے پر وہ نظریں جھکائے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ فجر، حنان کی آواز پر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ حنان، مجھے قبرستان جانا ہے، یہ کہہ کر وہ سر جھکا گئی۔ کب جانا ہے؟ وہ دھیمے لہجے میں کہتا اس کے جھکے سر کو دیکھنے لگا۔ جب تم فری ہو تب۔ فجر یوں ہی سر جھکائے بولی۔ تو چلو ابھی چلتے ہیں، حنان اٹھتے ہوئے کہنے لگا۔ فجر اسی کو ہی دیکھ رہی تھی۔ چلو فجر۔ حنان مسکراتا اسے دیکھ رہا تھا۔ فجر اس کے چہرے پر کچھ ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن اس کے چہرے پر نرم سی مسکراہٹ تھی اور بس۔ فجر سر جھٹک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور انس کو تیار کرنے چلی گئی۔ قبرستان کے سامنے گاڑی روک کر حنان نے انس کو اپنی گود میں لے لیا۔ میں انس کو دیکھتا ہوں، تم جاؤ۔ فجر اسے دیکھتی گاڑی سے نکل گئی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی آگے بڑھنے لگی اور ایک قبر کے سامنے رک کر کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اسے اپنے دل کی دھڑکن تیز ہوتی محسوس ہوئی۔ وہ یہاں آتی رہتی تھی، لیکن آج کافی دیر بعد آئی تھی یہاں۔ وہیں گھٹنوں کے بل وہ زمین پر بیٹھ گئی، ہاتھ بڑھا کر اس کے قبر کی مٹی کو چھوتی رہی۔ اسے اپنا گلا رونتا ہوا سا محسوس ہوا۔ بے آواز آنسو اس کے گالوں پر پھسلے تھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے آج، کہاں سے بات شروع کرے۔ انس، وہ بمشکل آنسوؤں کے بیچ بولی۔ انس 1 سال کا ہونے والا ہے۔ وہ کل حنان کو پاپا کہہ رہا تھا۔ وہ حنان کو پاپا سمجھتا ہے اپنا، لیکن وہ تمہیں بھی جانتا ہے تابش، تمہاری تصویروں سے۔ وہ خاموش ہو گئی۔ تابش، وہ اپنے لب کاٹنے لگی۔ پھر بھی یاد آتے ہو، پھر بھی یاد آتے ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ حنان بہت اچھا انسان ہے، عزت کرتی ہوں میں اس کی، احترام کرتی ہوں، محبت کرتی ہوں اس سے، لیکن تابش، وہ اور کچھ نہ بول پائی، بس خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ کیا بولے، کیا کہنا چاہ رہی ہے وہ، اسے خود بھی نہیں معلوم تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کبھی بھی حنان سے بے وفائی کی مرتکب ہو۔ اپنے ساتھ لائے پھول اس کی قبر پر پھیلا کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر آنسو صاف کر کے وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور ایک آخری نظر اس پر ڈال کر وہ منہ موڑ کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ یہ تو طے ہے کہ ہمیشہ کے لیے بچھڑے ہیں، دل بھی کوہرام اٹھاتا ہے، نہ دکھ ہوتا ہے۔ وہ انس کو کھانا کھلا رہی تھی جب اس کے موبائل کی بیپ بجی۔ اس نے ایک نظر دیکھا، حنان کا نمبر تھا۔ ریسیو کر کے اپنے کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا کر رہی ہو؟ وہ سلام کا جواب دیتے ہوئے پوچھنے لگا۔ انس کو کھانا کھلا رہی تھی۔ وہ انس کا منہ صاف کرتے بولی، ہمیں بھی یاد کر لیا کیجیے کبھی۔ حنان کے شوخ لہجے پر اسے ہنسی آئی، لیکن وہ ہنسی دباتے پوچھنے لگی، کیوں کا کیا مطلب ہے؟ ہسبینڈ ہوں بھائی آپ کا۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولا۔ اچھا سنو، شام کو تیار رہنا دونوں۔ حنان کی بات پر وہ چونکی۔ کیوں؟ انس کی برتھ ڈے ہے تو شاپنگ پر چلنا ہے نا۔ او اچھا، ٹھیک ہے، فجر نے مسکرا کر جواب دیا۔ الوداعی کلمات کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ڈور بیل کی آواز پر وہ انس کو لے کر باہر دیکھنے چلی گئی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی۔ جی، وہ سوالیہ نظروں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی، جبکہ وہ اس کی بات نظر انداز کر کے فجر کا ہی جائزہ لینے لگی۔ تو تم ہو حنان کی بیوی جس کے لیے وہ مرے جا رہا ہے؟ اس کے انداز پر فجر کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ کون ہیں آپ؟ اس نے تیز لہجے میں پوچھا۔ وہ بال سنوارتی انس کو دیکھنے لگی۔ یہ تابش کا بیٹا ہے یا حنان کا؟ فجر کو تو جیسے آگ ہی لگ گئی تھی۔ کون تھی یہ لڑکی جو اس انداز میں اس سے بات کر رہی تھی؟ کیا بکواس ہے یہ؟ لیکن اس پر تو فجر کے غصے کا اثر ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ویسے آئی مسٹ سے، حنان کو یوزڈ چیزوں کا بہت شوق ہے۔ شٹ اپ، ہو دا ہیل آر یو؟ فجر کی آواز اونچی ہوئی تو اس لڑکی نے بہت غور سے اسے دیکھا، پھر اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں تمہارے ہسبینڈ حنان کی فیونسی ہوں، زرلش۔ فجر پھٹی آنکھوں سے اس لڑکی کو دیکھنے لگی۔ شام کو وہ تینوں شاپنگ پر گئے تھے۔
हन्नान दिल से अंस के लिए शॉपिंग कर रहा था। एक एक चीज़ वो गौर से देख रहा था, जबकि फजर हन्नान को देख रही थी। उसकी हर हरकत को वो गौर से देख रही थी। उसे कहीं से नहीं लग रहा था कि हन्नान उससे कभी झूठ भी बोल सकता है। तो फिर क्यों क्यों इतनी बड़ी बात छुपाई थी उसने उससे? हन्नान ने फजर की तरफ देखा तो वो नज़रें चुरा गई। फजर को अपने करीब करके वो पूछने लगा, क्या हुआ? तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। तो इश्क हो रहा है आपको मुझसे, या प्यार आ रहा है मुझ पर, जो इतना गौर फरमा रही है मुझ पर? वो शरारती अंदाज में बोला तो फजर बिदक कर पीछे हटी और शाकी नज़रों से उसे देखने लगी। हन्नान हंस पड़ा। अच्छा सॉरी, देखो हन्नान के लिए मैंने क्या पसंद किया है। वो मुस्कुराते हुए उसे वहाँ पर चीज़ें दिखाने लगा। फजर भी सर झटक कर शॉपिंग में मसरूफ़ हुई। शॉपिंग के बाद तीनों पिज़्ज़ा खाने चले गए। अंस को पिज़्ज़ा बहुत पसंद था। हन्नान ने उसे अपनी गोद में बिठाया था और आराम आराम से उसे खाना खिला रहा था। अंस भी उसकी गोद में काफ़ी खुश था, बार बार अपनी मोहब्बत के मुजाहिरे भी करता हन्नान से। फजर गुमसुम सी निवाले ले रही थी। हन्नान ने काफ़ी बार नोट किया, लेकिन कहा कुछ नहीं। उसे समझ नहीं आ रही थी फजर की उस कैफियत के बारे में, लेकिन उसे बार बार कहकर वो डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। रात गए वो लोग घर आए थे और आते ही अंस सो गया था, जबकि फजर उसकी तमाम चीज़ें कबर्ड में रखकर कमरे से जा रही थी जब हन्नान ने उसे आवाज़ दी, फजर यहाँ आओ। वो चुपचाप उसके पास चली गई। जी। उसने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया। यहाँ बैठो, तुम्हारे लिए इतना काम करना ठीक नहीं है, थकी हुई भी हो तुम, आराम से सो जाओ अब बस। हन्नान के नर्म लहजे पर फजर खामोश रही, फिर उससे हटकर लेटने लगी थी। फजर की आंखें भर आई थी, लेकिन कहा कुछ नहीं, बस खामोशी से आंखें मूंद ली। उसके अंदर शोर बरपा था। बार बार उसे जरलिश की बातें याद आ रही थीं जो उसने फजर से की थी। हाँ, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ? जरलिश सोफे पर बैठते हुए कहने लगी। फजर भी उसके सामने बैठ गई। क्या बताना चाह रही थी तुम मुझे? क्या जानना चाहती हो तुम? जरलिश अबरू उचकाकर उसी से पूछने लगी। सब कुछ। हन्नान से तुम्हारा ब्रेकअप क्यों हुआ? फजर की सवालिया नज़रें उस पर थीं। जरलिश बाल झटक कर हंसने लगी, फिर उसकी तरफ देखने लगी। तुम्हारी वजह से। फिर से उसे हंसी का दौरा पड़ गया था। फजर को कोफ्त होने लगी। हन्नान की तो काफ़ी अरसे से तुम पर नज़र थी। वो तो मौके की तलाश में था कि किस तरह से तुम्हें ताबिश से हथिया ले। और ताबिश बेचारा उसे अपना भाई कहता था। उसे क्या खबर थी कि हन्नान दिल में क्या लिए बैठा है। तुम, ताबिश की जायदाद, सब उसे फ्री में मिलने जा रहे थे। तभी उसने मुझे अपने रास्ते से हटा दिया। उसने कंधे उचकाकर सब बताया उसे। फजर दम बखुद सब सुन रही थी। तुम झूठ बोल रही हो। बुलाया क्यों मुझे यहाँ जब मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं करना? वो मुंह बनाकर बोली। मुझे क्या ज़रूरत है जो मैं तुमसे झूठ बोलूँगी? पूछ लो हन्नान से, वो तो तुम्हें सच ही बताएगा ना, है या नहीं? ये कहकर वो दोबारा से हंसने लगी। फजर ने कोफ्त से उसकी हंसी को देखा। राज की बात बताऊं? जरलिश राजदाराना अंदाज में उसके करीब आकर बोली। वो तुमसे नहीं, तुम्हारे इस जिस्म से मोहब्बत करता है। वो मेरे करीब भी काफ़ी बार आने की कोशिश कर चुका है, लेकिन मैंने उसे ऐसा कुछ करने नहीं दिया। उसे तुम्हारी दौलत से मोहब्बत है, वो दौलत जो ताबिश तुम्हारे लिए छोड़कर जा चुका है। फजर बेयकीनी से उसे देख रही थी। वो हन्नान से मोहब्बत करने लगी थी। उसकी मोहब्बत पर यकीन करके वो उसके करीब हो रही थी, और अब ये सब सुनने के बाद उसे दुख हो रहा था। खुद से नफरत हो रही थी, खुद के वजूद से भी नफरत हो रही थी उसे, और उस नन्हे वजूद से भी जो उसके अंदर पल रहा था। चलो मैं चलती हूँ, बाय। जरलिश कहती हुई अपनी जगह से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। दरवाज़ा बंद करके फजर थकी थकी सी अपनी जगह पर आकर बैठ गई। हन्नान उसे धोखा दे रहा था, उसकी जायदाद हथियाने के लिए। ये सब ढोंग उसने इसलिए रचाया था। उसके अंदर गम, गुस्सा, दुख सब कुछ फैल चुका था। हन्नान घर में केक और मुख्तलिफ गिफ्ट्स के साथ दाखिल हुआ था। सारी चीज़ें टेबल पर रख कर वो अंस का पूछने लगा। अंस कहाँ है? वो सो रहा है, वो बेदिली से बोली। तो हन्नान मुस्कुराकर उसके करीब आया। कैसी तबीयत है अब? उसने उसके गिर्द बाजू हाइल किए, लेकिन फजर उससे दूर निकल कर खड़ी हुई। हन्नान को हैरत हुई। क्या हुआ है? फजर उसे देखने लगी, उसके चेहरे पर कुछ तलाश करने लगी, लेकिन वहाँ उसे सिवाय मोहब्बत और परेशानी के कुछ नज़र नहीं आया। क्यों कर रहे हो ये सब हन्नान?
क्या मतलब, क्या कर रहा हूँ मैं? वो हैरान हुआ था। अंश के लिए ये सब, मुझसे निकाह, हमारा ऐसे ख्याल रखना, ये सब क्यों कर रहे हो तुम? वो उसकी आंखों में देखती पूछ रही थी। मेरी फैमिली हो तुम दोनों, मोहब्बत करता हूँ मैं तुम दोनों से। उसे फज्र की आंखें सर्द और अजनबी सी लग रही थी। सच सुनना है मैंने, वो सर्द लहजे में बोली। फजर, क्या हो गया है तुम्हें? इतनी अजनबी और सर्द क्यों लग रही हैं तुम्हारी आंखें? हन्नान घबरा ही गया था। उसे खोने का खौफ उसे हमेशा अंदर ही अंदर खाता था। उसने पेपर्स हन्नान की तरफ फेंके। ये लो। सारे पेपर्स नीचे बिखर गए थे। क्या है ये? वो परेशानी से नीचे पड़े पेपर्स देखने लगा। वही जो तुम चाहते थे, जिसके लिए तुमने मुझसे शादी का ड्रामा रचाया, ताबिश की सारी जायदाद। वो नफरत से फुंकारी थी। हन्नान हैरत से गूंग उसे देख रहा था। ड्रामा करना छोड़ दो अब अपनी इस सो कॉल्ड मोहब्बत का। फजर, वो हैरत से अपने सामने खड़ी अपनी बीवी को देख रहा था, जो उसे अजनबी लग रही थी। लो, उठाओ सारे पेपर्स। वो चिल्लाई। बस कर दो फजर, मुझे इतना मत गिराओ प्लीज़। वो बेबसी से बोला। और मुझे जो इतना गिराया सबके सामने? उसकी आंखें नम हुई थी। मैंने किसी के सामने नहीं गिराया तुम्हें, वो मजबूत लहजे में बोला। तो कौन है जरलिश, जिसे मुझसे ज़्यादा सब मालूम है तुम्हारे बारे में? जो कुछ मुझसे छुपाया, मुझे नहीं बताया, वो सब उसे कैसे मालूम है? इतनी इम्पोर्टेंट है वो तुम्हारे लिए? वो रोते हुए बोली। जरलिश, उसने जेरे लब दोहराया। यहाँ जरलिश आई थी? ओ माय गॉड, कब? क्यों? तुम्हारे सारे सीक्रेट्स मुझे बताए, तभी तुम्हें डर लग रहा है अब? वो उसे शाकी नज़रों से देखने लगी। कौन से सीक्रेट्स? मुझे नहीं पता उसने क्या कहा है तुमसे, लेकिन चुप करो तुम। फजर उसकी बात काटते हुए चीखी थी। फियांसी थी ना वो तुम्हारी, क्यों छोड़ दिया उसे तुमने? क्योंकि तुम्हारे गंदे प्लान्स के बीच वो दीवार बन रही थी। चुप रहो फजर, जिस बात का पता नहीं है खुद से मत बोलो कुछ भी। हन्नान नजरें चुराता कहने लगा। यहाँ जरलिश आई थी? ओ माय गॉड, कब? क्यों? तुम्हारे सारे सीक्रेट्स मुझे बताए, तभी तुम्हें डर लग रहा है अब? वो उसे शाकी नज़रों से देखने लगी। कौन से सीक्रेट्स? मुझे नहीं पता उसने क्या कहा है तुमसे, लेकिन चुप करो तुम। फजर उसकी बात काट कर चिल्लाई। फियांसी थी ना वो तुम्हारी, क्यों छोड़ दिया उसे तुमने? क्योंकि तुम्हारे गंदे प्लान्स के बीच में वो दीवार बन रही थी, इसलिए? चुप रहो फजर, जिस बात का नहीं पता खुद से कुछ मत बोलो। हन्नान नजरें चुराता कहने लगा। तो क्या है सच? तुम बताओ ना। नजरें क्यों चुरा रहे हो मुझसे? सच क्यों नहीं सुन सकते तुम? सच क्यों नहीं सुन सकते तुम? हिम्मत है तो बताओ तुम सच मुझे। तुम क्यों बताओगे मुझे कुछ? तुम खुद जब क्योंकि मुझे तुमसे मोहब्बत होने लगी थी। उस मोहब्बत से बचने के लिए मैंने जरलिश से मंगनी की थी। हन्नान एकदम से उसकी बात काट कर चिल्लाया। फजर साकित आंखों से उसे देखने लगी, जबकि हन्नान बेबसी से लब काटने लगा। मुझे तो तुमसे मोहब्बत हो चुकी थी फजर, बेइंतहा मोहब्बत। लेकिन ताबिश, ताबिश भी तुम्हें चाहने लगा था। तुम दोनों के रास्ते से हटने के लिए मैंने जरलिश को अपना लिया। मेरे पास यही एक ऑप्शन था। जब ताबिश ने मुझे तुमसे निकाह को कहा, तब मैंने अपने सारे रिश्ते जरलिश से तोड़ दिए, क्योंकि वो वैसे भी मुझसे बोर हो गई थी और वो सीरियस थी भी नहीं मेरे साथ। फजर थकी थकी सी सोफे पर जाकर बैठ गई। हन्नान भी उसके करीब जाकर बैठ गया। मुझे तुम्हारी या ताबिश की जायदाद से कोई गर्ज न पहले कभी था और न अब है। मेरे लिए तुम ही सब कुछ हो मेरा फजर। तुम मेरी पहली मोहब्बत हो। तुम ही वो लड़की हो जिससे मुझे बेलौस मोहब्बत हो गई थी। आज भी मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। फजर उसकी आंखें भीगी हुई महसूस कर रही थी। ये आंखें कभी झूठ नहीं बोल सकती। मर्द की आंखों में जब आंसू हो, वो कभी झूठ नहीं बोलता। फजर, कुछ मत बोलो, चुप रहो। हन्नान, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। वो रूहानसी होते हुए बोली। मैं उसकी बातों में आ गई और तुम पर शक कर बैठी। उसके हाथ थाम कर वो रोए जा रही थी। हन्नान ने उसके आंसू साफ किए और उसके नर्मो गुदाज गालों पर मोहब्बत की मोहर सब्त की। मत रो प्लीज़, आई लव यू सो मच। हन्नान ने भी उसे यही कहा। उसने भी आंसू भरी आंखों से हन्नान से मोहब्बत का इजहार किया। उसे खुद से नफरत होने लगी थी कि वो किस तरह जरलिश की बातों में आकर हन्नान पर शक कर बैठी थी। वो हन्नान जिसने हर लम्हे उसका ख्याल रखा, उसके हर ख्वाहिश का एहतराम किया, वो खुद से ही शर्मिंदा हो रही थी।
फजर उसके करीब बेड पर पुरसकून सो रही थी, जबकि हन्नान उसके चेहरे को महवियत से देख रहा था। आज के वाक़ये से वो परेशान हो गया था। हर लम्हा वो सिर्फ इस बात से खाइफ रहता कि कहीं वो फजर को खो ना दे। वो बेलौस मोहब्बत करता रहा है हमेशा से फजर से। उसे वो लम्हा याद आया जब ताबिश उसे फजर का बताने आया था। यार बहुत अच्छी लगती है फजर मुझे, हद से ज़्यादा, बेहद चाहने लगा हूँ मैं उसे। कुछ बताओ, आइडिया दो मुझे कि किस तरह से फजर को प्रपोज़ करूँ। आई वांना मैरी हर। ताबिश के अल्फाज ने हन्नान के अंदर बरसों पुरानी यकतरफा मोहब्बत को राख कर दिया था। ताबिश भी फजर को चाहता है और वो ताबिश को बहुत प्यार करता था, उसे भाई कहता था। ऐसा कैसे मुमकिन था कि वो अपने भाई को दुख दे। तभी वो साइड पर हो गया था। तो जाके बोल दे फजर को कि तू उसे चाहता है, उसने हंसने की कोशिश करते हुए कहा। कैसे बोल दूँ? इनकार कर दिया तो? वो घबराया हुआ सा था। लेकिन मुझे तो लगता है कि फजर भी तुझे पसंद करती है, हन्नान शरारती अंदाज में कह रहा था, जबकि ताबिश उसे शाकी नज़रों से देखने लगा। झूठ बोल के दिल ना तोड़ मेरा, हन्नान का कहकहा बेसाख्ता निकला था। क्यों हंस रहे हो तुम दोनों? फजर भी उसी वक्त उनके पास आकर बैठी थी। फजर, ताबिश को तुमसे मोहब्बत हो गई है, शादी करना चाहता है तुमसे। रेडी हो तुम भी? हन्नान फजर से कहने लगा, जबकि फजर हैरत से मुंह खोले उन दोनों को देख रही थी और ताबिश हवन्नक बना फजर को देख रहा था। हन्नान के लबों पर मुस्कुराहट ठहर गई। माजी की यादों से निकलकर उसने फजर के चेहरे पर नज़र डाली। उसका जहन बार बार जरलिश की तरफ जा रहा था। अब वो दोबारा से फिर कौन सा नक्शा अपने दिमाग में बनाकर उनकी ज़िंदगी में आई थी। जरलिश, तुम्हें मैं अपनी ज़िंदगी तबाह करने नहीं दूंगा। तुम्हें फजर से दूर ही रखना है मैंने। बर्बाद कर दूंगी मैं तुम्हें और तुम्हारी फजर को। याद रखना हन्नान, ऐसे छोड़कर जा रहे हो मुझे, याद रखना, मैं फिर आऊँगी। उसके इर्द गिर्द जरलिश की जहरीली आवाज़ गूंजी थी। उस औरत, बदजात औरत के लिए तुम मुझे छोड़ रहे हो? शट अप, हन्नान चिल्लाया था। ज़ुबान संभाल के बात करो, वो एक पाक दामन औरत है। जबकि जरलिश बेसाख्ता हंसने लगी। मार दूंगी तुम्हारी उस पाक दामन बीवी को मैं, वो उसकी आंखों में देखते बोली, जबकि हन्नान वहाँ से निकलता चला गया। माजी की याद से निकलकर हन्नान ने फजर के चेहरे को उंगली की पूर से छुआ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, आई प्रॉमिस यू, वो ज़ेरे लब कहता उसे देखने लगा। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, सामने हन्नान कड़े तेवरों के साथ खड़ा था। ओहो, हमारी दहलीज को इज्जत बख्शने, देखो तो कौन आया है, उसने अपने मखसूस अंदाज में हन्नान को देखते हुए कहा। हन्नान ने उसका बाजू दबोचा और उसे अंदर लेकर गया। क्यों गई थी तुम फजर के पास? वो सर्द लहजे में गुर्राया था। ओह, तो पता चल गया तुम्हें? बस क्या है ना कि बरसों पुरानी बातें तड़पाने लगी मुझे, सोचा कि कुछ अमल ही कर लिया जाए। वो हन्नान के चेहरे पर अपनी उंगली फेरते बोली। हन्नान ने झटके से उसका बाजू छोड़कर उसे खुद से दूर किया। क्या यार, अब इतनी दूरियां? वो उसके करीब आते बोली। शट अप जरलिश, जस्ट शट अप। उसने उंगली उठाकर तंबीह की। मेरी बीवी से, मेरे घर से दूर रहो। और तुमसे क्या? वो उसे अपनी नज़रों के हिसार में लिए बोली। मैं बहुत पहले ही तुम्हें खुद से अलग कर चुका, उसने सर्द लहजे में कहा। तभी तो मैं और करीब आ रही हूँ तुम्हारी बीवी के। वो क्या है ना, मुझसे रहा नहीं जाता अब तुम्हारे बिना हन्नान। हन्नान लब भींचे उसे देखने लगा। एक ही बार करीब आके सब दूरियां मिटा दो, मैं छोड़ दूंगी तुम्हारी बीवी का पूछा। वो हन्नान के गले में बाहें डालकर बेबाकी से बोली। हन्नान ने झटके से उसे खुद से दूर कर दिया। तुम्हारी ज़हनियत तो बस यहीं पे ख़त्म होती है, वो हंसने लगी। क्या करूं, हैंडसम ही बहुत हो तुम। आइंदा मेरे घर के आसपास भी नज़र आई ना तो बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए, वो कहकर जाने को मुड़ा। तुमसे बुरा कोई है भी नहीं, उसकी हंसी गूंजी थी। हन्नान नज़रअंदाज करता वहाँ से निकलता चला गया, जबकि जरलिश ने अपने मोबाइल को उठाया और फजर का नंबर मिलाने लगी। दूसरी तरफ 3-4 बेल्स के बाद फ़ोन उठाया गया। हेलो, फजर की आवाज़ गूंजी। हेलो फजर, भाई कैसी बीवी हो तुम? अपने शोहर की खबर ही नहीं तुम्हें, किधर किधर घूमता फिरता रहता है। उसके मखसूस अंदाज पर फजर को नागवारी सी महसूस हुई। कॉल क्यों की, उसने नागवारी से पूछा। हैरत होती है मुझे तुम पर, इतना ट्रस्ट नहीं होना चाहिए शोहर पर। लगाम डाल कर रखो शोहर को, शक की नज़र से देखो उसे, तभी मुट्ठी में रहते हैं वरना निकल जाते हैं।
زرلش کی بات سن کر وہ سرد مہری سے بولی، نیکسٹ ٹائم یہاں کال مت کرنا۔ اس نے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ زرلش آگ بگولا ہو گئی، دیکھ لوں گی تمہیں میں فجر، تڑپا تڑپا کر ماروں گی میں تمہیں۔ اس کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ ابھری تھی۔